So, good morning to all students. Today I am going to discuss on regression, some numerical problems on regression. This class is for PG semester 2 and this is useful for statistical methods. First thing you should know about the regression line, which you can see the regression line between x and y can be explained through one straight line. This is linear equation. Now the main point is, how would we calculate regression equation? What are the different procedures to calculate the equation of regression line? First of all, you see regression y on x is y is equal to ax plus b. The least square regression line for the set of n data points is given by the equation of a line in slope intercept form like this: y is equal to ax plus b. Y is equal to ax plus b, or it could be a plus bx. I think there is. Now we consider one regression is y is equal to a plus bx, where a is coefficient and b is slope. Here the written is in opposite way. Now you consider y is equal to a plus bx. So a is coefficient and b is slope of the regression line. So now the point is, how would we calculate the regression line? For that you should know the value of a and b. In the here I have taken ax plus b, but you can consider y is equal to a plus bx. Okay, and a is coefficient, b is also coefficient, but a is interceptor, b is slope. Now you have to calculate the value of a and b. So the regression line basically is obtained, the value of a can be obtained through minimization of error term. It means we can say that if we minimize error terms, that is summation y minus y hat square, and minimize that and differentiate with respect to a and b, there will be partial differentiation, then we can get through that procedure the value of a and b. So the value of a, the parameter a value is equal to n summation xy minus summation x summation y divided by n summation x square minus summation x whole square. So this is the value of a, and the value of b is equal to 1 upon n summation y minus a summation x. Now what are the steps to calculate regression line? First and foremost thing, you arrange all values, all of the x values in one tabular form, then all of the y values, then you calculate summation x and summation y. Later on you calculate x into y for each ordered pair. These are the steps. How would we solve numericals? These are the different steps. So third step is x into y for each ordered pair. Then you calculate x square for each x value. Because here you have to find regression y on x, so we need 4 terms: summation x, summation y, summation x into y, and summation x square. As per this formula, see, summation xy, summation y, summation x square, and summation x is also required. So these are the different steps for solving numerical of regression. Now we can understand the concept of regression with the help of some numericals. Now I am sharing one question. See the numerical on regression. The question number 1 is the values of y and their corresponding values of y. Sorry, values of x it should be. There is typing error. The values of x and their corresponding values of y are shown in the table below. Y is equal to 0, 1, 2, 3, 4, y 2, 3, 5, 4, 6. These are the values. Now the question is, find the least square regression line y is equal to ax plus b.
एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। कहने का अर्थ यह है आपके पास टेबल में x और y का वैल्यू दिया हुआ है और आपको रिग्रेशन लाइन निकालना है। तो अब हम कैसे रिग्रेशन लाइन निकालेंगे? तो देखिए रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, यहाँ y इज इक्वल टू ax प्लस बी यहाँ भी लिया गया है। और आपको जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम use the table to calculate a and b like this. First of all x का वैल्यू को अरेंज कर लेंगे। देखिए x का वैल्यू अरेंज है, समेशन x निकाल लेंगे। फिर y के वैल्यू को अरेंज कर लेंगे, समेशन y, मतलब y के टोटल जो वैल्यू है उसका योगफल निकाल लेंगे। उसके बाद x इंटू वाई, एक एक टर्म को x और y को गुना करेंगे, उससे जो वैल्यू आया x y उसका वैल्यू को बाद में ऐड करेंगे, दैट इज समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 49 आया है। फिर समेशन एक्स स्क्वायर हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपका समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, ये सारा टर्म आपका निकल जाएगा। ये निकलेगा, उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, ए और बी वैल्यू किया। प्रेडिक्शन ए और बी का जो आता है आपका एरर टर्म को मिनिमाइज करने के बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। उसके बाद ए और बी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद ए और बी का वैल्यू आता है। ए क्या है, इंटरसेप्ट टर्म, बी है आपका यहाँ पे बी जो है आपका यहाँ पे जो है आपका स्लोप है। तो देखिए क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट y इज इक्वल टू ax प्लस बी या b प्लस ax कहिए। तो इस केस में यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन ए जो है आपका ये कह रहा है आपका नेक्स्ट कि हम कैलकुलेट कर लेंगे ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। उसके बाद नाउ वी हैव द लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, ए और बी का वैल्यू आपका जो है वो कोएफिशिएंट और जो है स्लोप दोनों का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, उससे आपका रिग्रेशन लाइन निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो देखिए यहाँ पे ax प्लस b ही है, तो यहाँ पे आपका जो है b, यहाँ पे ax प्लस b है, तो y इज इक्वल टू 0.9 इंटू x का वैल्यू 10 दिया हुआ है और 2.2 आपका b का वैल्यू आया। तो इस केस में a और b का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे उल्टा मान लीजिए, यहाँ पे a जो है स्लोप है और b जो है आपका कांस्टेंट टर्म है। देखिए वो चेंज करता है, सवाल कभी कभी आपको ट्विस्ट कर देता है। जैसे यहाँ देखिए सॉल्व क्वेश्चन ही दिया y इज इक्वल टू ax प्लस b, तो y इज इक्वल टू b प्लस ax भी हो सकता है, a प्लस bx भी हो सकता है। तो जिस तरह से सवाल देगा उस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे a का वैल्यू उस फार्मूला से निकाल लिए, 0.9 आया a का वैल्यू, ठीक है। b का वैल्यू 2.2 और उसके बाद हम रिग्रेशन लाइन में फिट कर दिए y इज इक्वल टू ax प्लस b, और वो कैलकुलेट होने के बाद हमारा रिग्रेशन इक्वेशन जो है बन गया। उसके बाद कह रहा है क्या कि व्हेन x इज इक्वल टू 10 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन, तो वो y का वैल्यू 11.2 होगा। ये एक सवाल है, इस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी बात है आपका कि न्यूमेरिकल ऑन रिग्रेशन, दूसरा एक डिस्कशन हम करते हैं, एक और सवाल, ठीक है। फाइंड द लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट का डेटा है एक्स और वाई को डिनोट करता है। आप जान रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है -1 0, अर्थात x1 y1 -1 x1 है, y1 0 है। फिर 0 2 है, उसका मतलब है x2 y2, x2 का वैल्यू 0 है, y2 का वैल्यू 2 है। उसके बाद है 1 4, इट मींस x3 का वैल्यू 1 है, y3 का वैल्यू 4 है। उसके बाद है आपका x4 y4, x4 का वैल्यू 2 है और y4 का वैल्यू 5 है। इस तरह से आपको सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, ये सवाल है। फिर आगे नेक्स्ट सवाल इसी में पूछा गया है कि प्लॉट द गिवन पॉइंट्स एंड द रिग्रेशन लाइन इन द सेम रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच
आपको वो डायग्राम प्लॉट करना है, वो स्ट्रेट लाइन किस तरह से आएगा। वो दो प्रश्न, देयर आर 2 क्वेश्चंस इन दिस, सो हाउ वुड वी सॉल्व दिस। इसके लिए फिर हम वो स्टेप आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वैल्यू को अरेंज कर लेंगे, उसके बाद वाई के वैल्यू को अरेंज कर लेंगे, उसके बाद एक्स इंटू वाई कैलकुलेट करके उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर, चूंकि यहाँ रिग्रेशन वाई और एक्स मांग रहा है, एक्स और वाई रहता तो वाई स्क्वायर निकालना पड़ता। देखिए उसमें थोड़ा अपोजिट होता है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू है -1, 0, 1, 2, जो कि मैंने अभी बता रहा था, x1 y1, y1 भी 0 है, x2 y2, x2 0 है, y2 2 है। तो x का वैल्यू को एक तरफ अरेंज किए, -1, 0, 1, 2। y का वैल्यू को वो हम अरेंज कर लिए 0, 2, 4, 5। x गुना y, तो देखिए -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 5 10। इस तरह से हमने एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन निकाल लिए। एक्स वाई के मल्टीप्लीकेशन निकालने के बाद अगला टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर। तो एक्स का जो टर्म है उसका स्क्वायर निकालेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से हम एक्स स्क्वायर के वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर रिग्रेशन एक्स ऑन वाई अगर रहेगा तो उस केस में वाई स्क्वायर भी हमें निकालना होगा, और वाई स्क्वायर को उस फॉर्मूला के अनुसार जो बीटा का फॉर्मूला है, जो कि स्लोप का फॉर्मूला है, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इस सवाल में आपको समय एक्स का वैल्यू पता है, वाई का वैल्यू पता है, एक्स वाई का वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता है। आफ्टर गेटिंग दिस ऑल वैल्यू यू हैव टू सम। तो सम ऑफ एक्स निकालेंगे, सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सारे समेशन के निकालने के बाद हम जो है उसको आपको आगे फॉर्मूला में पुट करेंगे। नाउ वी यूज द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट ए एंड बी एज फॉलोज। ए का वैल्यू आप जान रहे हैं, फॉर्मूला मैंने शेयर किया, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। सो ये जो है आपका ए का फॉर्मूला होता है। अब ए के फॉर्मूला में आपको देखिए n, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ आइटम्स, x का वैल्यू 4 है, y का भी वैल्यू 4 है, लेकिन हमें वही n जितना है, x जितना होगा उतना ही y होगा, तभी रिग्रेशन है। ऐसा नहीं x 4 है और y 5 है, ऐसा नहीं होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो डेटा पॉइंट सेम होना चाहिए। तो x और y दोनों 4 नंबर्स हैं, तो n का वैल्यू हो गया 4। हम देखें कि पीछे समेशन एक्स वाई का वैल्यू हमें 14 आया है। अगर आप देखें पीछे के स्लाइड, समेशन एक्स वाई का वैल्यू 14 आया है, तो हम 14 पुट किए, 4 इंटू 14। फिर समेशन एक्स, तो देखिए क्या है, फिर समेशन वाई आपका 11 आया है, फिर आपका n समेशन जो है आपका 6 आया है, तो 6 ये भी हम पुट कर दिए। और समेशन एक्स ऑलरेडी हमने बताया कि 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर। तो ये आप सारा चीज पुट किए, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू 4 इंटू 14 माइनस 2 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 4। वो इसके कैलकुलेशन को हम जब आगे फर्दर करेंगे तो 17/10 आया, दैट इज इक्वल टू 1.7। तो ए का वैल्यू आपका 1.7 हो गया। और उसके बाद बी का वैल्यू, तो बी जो है आपका 1n समेशन y माइनस ए समेशन x, जो कि यहाँ 1/4 इंटू 11 माइनस 1.7 इंटू 2 समेशन y और समेशन x आपको मालूम है, n का वैल्यू मालूम है, इसीलिए यहाँ 1/4 हो गया इंटू 11, समेशन y का वैल्यू 11 है, और ए का वैल्यू आ गया। देखिए ए का वैल्यू आया तब हम बी का वैल्यू निकालेंगे, तो ए का वैल्यू आ गया 1.7 इंटू 2, और 2 का वैल्यू आपका समेशन एक्स का वैल्यू 2 है, तो वो आने के बाद 1.9 आपका बी का कैलकुलेट हुआ। अब हम रिग्रेशन वाई, तो वो शुरू से हम ए एक्स प्लस बी लिए हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, एक चीज को सेट करके दिमाग में रखना है। तो आप देख रहे हैं
ये जो b का वैल्यू है ये आपको आया है 1.9। तो देखिए इंटरनेट इज अनस्टेबल, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। ये y इक्वल टू एक्स प्लस बी आया है। तो देखिए b का वैल्यू डायग्राम को स्पष्ट तरीके से देखिए, उससे थोड़ा नीचे हो, दैट इज 1.9 हमारा जो b कोएफिशिएंट है। और ये फार्मूला ऐसे उल्टा लिखा गया है, y इक्वल टू एक्स प्लस बी, उसको ऐसे पढ़ा जाए y इक्वल टू बी प्लस एक्स। ये ए बी आप देखिए, जो जिसमें x नहीं लगा हुआ होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, जिसमें x लगा हुआ होगा वो हो जाएगा आपका स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे b क्या है, b कांस्टेंट टर्म है और ax a स्लोप है। तो b का वैल्यू पिछले एग्जाम अभी हम कैलकुलेट किए 1.9 और a का वैल्यू 1.7। तो हम हर एक वैल्यू लेकर अगर आप 4-5 वैल्यू लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन, ये हमें बता रहा है रिग्रेशन लाइन का स्लोप और रिग्रेशन लाइन का सेट। इस प्रकार से हम रिग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पैरामीटर ए और बी का वैल्यू अगर हमें मालूम है तो हम आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन जो है आपका, एक्चुअली रिग्रेशन इक्वेशन दो बात अभी हम बताने की कोशिश करेंगे। हम कैलकुलेटेड करते हैं, एक एस्टिमेट करते हैं। रिग्रेशन में आप देखिए x और y दो वेरिएबल्स हमने लिया। So x and y are two variables representing some population. Regression equation explains y in terms of x. It means y depends on x. We may write the behavioral equation y is equal to alpha plus beta x plus error term u. उसी एरर टर्म को मिनिमाइज करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं। In this specification, expectation of y given x is equal to alpha plus beta x. Expectation y given x may also be termed as y hat. Therefore, expectation of y given x is equal to y hat is equal to alpha plus beta x. Then we may write y is equal to expectation of y given x plus u is equal to y hat plus u. अर्थात देखिए y hat है एस्टिमेटेड वैल्यू और u है एरर टर्म और y है एक्चुअल वैल्यू। तो देखिए मान लीजिए एस्टिमेट हम किए कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, इनकम कंजम्पशन अगर 50 है तो हो सकता है, या इनकम हमारा 100 है तो कंजम्पशन 50 है, लेकिन हो सकता है वो 49 हो जाए। तो क्या हो गया, वो एरर हो गया -1। तो वही हमारा जो y जो है यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है, y है एस्टिमेटेड वैल्यू है। एस्टिमेटेड वैल्यू से एरर जो है आपका +1 -1 हो सकता है। इसलिए जब हम रिग्रेशन लाइन को फिट करते हैं एरर को मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज जब एरर हो गया मतलब मीन ऑफ एरर टर्म्स माइनस प्लस होकर सब 0 हो जाएगा। मीन ऑफ एरर टर्म्स अगर हमारा 0 है तो इसका मतलब है हमारा जो फिट लाइन है वो गुडनेस ऑफ फिट और उसका जो फिटिंग लाइन है वो प्रॉपर है। इस तरह से हम रिग्रेशन लाइन के को समझते हैं। और आगे देखिए एम्पिरिकल मॉडल और इकोनोमेट्रिक मॉडल, वो दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए एम्पिरिकल रिग्रेशन अभी आपने निकाला डिटरमिनिस्टिक इक्वेशन y हैट एस्टिमेटेड जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा x होता है, ठीक है। लेकिन जिसको हम ऑब्जर्व y नॉट इंक्लूडेड और एस्टिमेटेड y, हाँ इसको ऑब्जर्व y बोलेंगे और एस्टिमेटेड y में एरर होगा। तो ये स्टोकास्टिक रिग्रेशन अल्फा प्लस बीटा x प्लस u, ये थ्योरेटिकल रिग्रेशन इक्वेशन है और ये इंपेरिकल रिग्रेशन इक्वेशन है। ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस है। इंपेरिकल मतलब x y एरर टर्म तो दिखता नहीं है आपका, इसलिए आपको इक्वेशन भी जो अभी आया अर्लियर y इज इक्वल टू आपका b प्लस ax आया या ax प्लस b, जैसा बोलिए आप, उस तरह से हम रिग्रेशन को सॉल्व किए। अब आगे कुछ बातें हैं जो कि हम शेयर करना चाहेंगे। रिग्रेशन मॉडल किस तरह का होता है, ठीक है। The regressions are named with respect to the number of independent variables and description. अब देखिए दो मुख्य बात है, there are two main things. First is simple regression model, that is bivariate regression model. उस केस में हम लेते हैं y is equal to alpha plus beta x plus u, where the intercept alpha and the slope beta are the parameters and u is a random error component.
द एरर्स आर assumed to have been zero, जो कि मैंने पहले बताया, एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। उसके बाद अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल लेंगे तो देखिए यहाँ x एक वेरिएबल है, x एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो मल्टीपल रिग्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। तो जैसे देखिए मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में क्या हो जाएगा, y is equal to बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस u, where the intercept बीटा 0, बीटा 1 and बीटा 2 are parameters and u is a random error component। और उस वेरिएबल में जैसे दो लिए, अगर k वेरिएबल है, मान लीजिए k वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, y is equal to बीटा 1 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस डॉट 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 सो ऑन प्लस बीटा के x के प्लस एरर टर्म u, where the intercept beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 dot dot beta k are parameters and u is a random error component। तो ये दो परफॉर्मा है, दो अंतर है दोनों में। आपका सिंपल रिग्रेशन जिसको हम बाइवेरिएट रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं, और दूसरा जो है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, उसका परफॉर्मा इस तरह से होता है। जैसे देखिए आप रिग्रेशन मॉडल में यहाँ पे सिंपल रिग्रेशन में हमने अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाला, जो कि बहुत सिंपल वे में हमने निकाला। फिर मल्टीपल रिग्रेशन में भी बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 इस तरह से निकलेगा उसका वैल्यू। तो उस केस में हम पार्शियल कोएफिशिएंट के रूप में निकालेंगे, जो कि 1 स्टेप अहेड होगा। उसको हम टेक्निकली बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 का फार्मूला सब निकालेंगे, उसके बाद उसको पुट करके रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन को फिट करते हैं, उसको निकालते हैं। तो ये दीज आर द स्टेप्स, और रिग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स मेनली। फर्स्ट इज सिंपल रिग्रेशन, दैट इज बाइवेरिएट रिग्रेशन मॉडल। सेकेंड इज मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, अब आता है कि देखिए रिग्रेशन जो इतनी बात हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है आपका क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। उसका एजम्पशन क्या है, ये एजम्पशन जानना बहुत जरूरी है। तो एजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल तो बोलता क्या है, द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। ऐसे नहीं हम रिग्रेशन लाइन सीधे फिट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find the level of errors in that regression, so sum of which refers to distribution of random variable u, sum to the relationship between u and the explanatory variable। कहने का अर्थ यह है, ये जो एरर टर्म है और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल x1 x2 जो है, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और जो है एरर टर्म जो है वो आपका जो है उसका मीन 0 होना चाहिए। तो ये सारे assumptions है। These assumptions are about the random term u that transforms a statistical model into the econometric model। अब हम ये मॉडल का क्या क्या assumptions लिया जाता है ये जानना जरूरी है। अगर हम रिग्रेशन कैलकुलेशंस के साथ साथ उसका इंटरप्रिटेशन हम क्या कर रहे हैं वो जानना जरूरी है। तो देखिए पहला ये सर्टेन 10 assumptions है जो लिया गया है, वो assumptions फॉलो किया जाता है, तभी हम बोलते हैं कि हमारा ये क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल सही है और इसको हम बेस्ट लीनियर रिग्रेशन मॉडल बोल सकते हैं। तो अब देखिए एजम्पशन 1 कहता है, देखिए 10 एजम्पशंस हैं, हम एजम्पशंस को स्टेप वाइज बताते जा रहे हैं। तो पहला एजम्पशन है कि फॉर गिवन x ui is a random variable with the mean value of 0, अर्थात एक्सपेक्टेशन ऑफ ui is equal to 0, u एरर टर्म माइनस प्लस होके 0 होना है, तभी हमारा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वो होगा। दूसरा, फॉर गिवन x द वेरिएंस ऑफ ui इज ए कांस्टेंट और होमोसिडास्टिक। इसका मतलब है वेरिएबिलिटी इन वेरिएंस नहीं होना चाहिए। वेरिएंस जो है, वेरिएंस जो कि सिग्मा स्क्वायर है, वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। वो हम टेक्निकली जब आप इकोनोमेट्रिक्स को समझेंगे तो वो वेरिएबिलिटी इन वेरिएंस और हेटेरोसेडास्टिसिटी और होमोसेडास्टिसिटी वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो ये मानना है हमारा एरर टर्म में वेरिएबिलिटी नहीं होना चाहिए, वेरिएंस का एरर टर्म जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये दूसरा एजम्पशन है। तीसरा है देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन इन द डिस्टर्बेंसेस। देखिए यूआई यूजे दो तीन टर्म है, उस समय जो ऑटो कोरिलेशन है उसमें कोई रिलेशन एरर टर्म आपस में संबंधित रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये तीसरा एजम्पशन बोलता है। चौथा बोलता है द स्टोकास्टिक टर्म इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
वो यूआई जो है, यूआई को स्टोकास्टिक टर्म बोलते हैं, एरर टर्म, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, उसका जो है पैटर्न नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद assumption 5 है, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट एक्स आर फिक्स्ड इन रिपीटिंग सैंपलिंग इफ द वैल्यू ऑफ एक्स आर स्टोकास्टिक द डिस्टर्बेंस टर्म एंड द एक्स आर इंडिपेंडेंट और एटलीस्ट अनकोरिलेटेड। वही जो कि हम थ्योरेटिकली पहले से जस्ट फर्स्ट स्लाइड में बताए कि एक्स और यू एरर टर्म और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसी को ये assumption 5 बोलता है। उसे assumption 6 बोलता है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मेजर्ड विदाउट एरर। हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 जो मेजर कर रहे हैं वो विदाउट एरर होना चाहिए। उसके बाद आपका अदर assumptions ऑफ ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर्स जो आता है वो assumption 7 है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये होनी चाहिए। assumption 8 बोलता है द रिग्रेशन मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड एंड द रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन द पैरामीटर्स। पैरामीटर अल्फा बीटा लीनियर होना चाहिए, ठीक है, लीनियर इन पैरामीटर। ठीक है, तो वो अगर नॉन लीनियर होगा तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल नहीं होगा। assumption 9 बोलता है द वेरिएबल्स यूज्ड इन द मॉडल शुड बी एप्रोप्रिएटली एग्रीगेटेड। सारा वेरिएबल जो है एप्रोप्रिएटली जो उसको लिया जा रहा है वो समावेशित अच्छे तरीके से उसमें एप्रोप्रिएट ढंग से होना चाहिए। और लास्ट assumption है 10वां, देयर मस्ट बी सफिशिएंट वेरिएबिलिटी इन द वैल्यू टेकन बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम x ले रहे हैं y भी वेरी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि x ले रहे हैं y हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबिलिटी होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल में। x लेते गए, x1 x2 लेते गए, y का वैल्यू बदलते गया, तब जाके वो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो है assumptions को फॉलो होगा, तभी हम रिग्रेशन मॉडल फिट कर सकते हैं। तो ये आपका 10 assumptions है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। इस तरह से हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के ये सारे थ्योरेटिकल assumptions है, ये होगा, उसके बाद ही हम रिग्रेशन फिट कर सकते हैं। और रिग्रेशन आपका जो तरीके का होगा, सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। और रिग्रेशन के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हमने ये स्टेप्स बताए हैं कि पहले x के वैल्यू को अरेंज कर लेंगे, फिर y के वैल्यू को अरेंज कर लेंगे, उसके बाद x और y के मल्टीपल को हम अरेंज कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर और ईच x वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने रिग्रेशन y ऑन x की बात की है। y ऑन x मतलब y x पर निर्भर करता है। अगर x ऑन y है, उल्टा है, तब उस केस में हमें y स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, y स्क्वायर और ईच y वैल्यू, ठीक है। और वो इक्वेशन भी उल्टा हो जाएगा, y इज इक्वल टू, मान के चलिए ax प्लस बी यहाँ लिए हैं, तो वहां पे x इज इक्वल टू हो सकता है ay प्लस बी हो। उस तरह के केस में हम y स्क्वायर निकालेंगे और उसका समेशन निकालेंगे। तो ये देखना है रिग्रेशन x ऑन y है या y ऑन x। जनरली अगर आप assumption लेते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस बी या a प्लस bf, तो उसमें जो है ये रिग्रेशन y ऑन x है, और उस केस में हम आपका ये सारे मेथड्स को कैलकुलेट करके उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि दो एग्जांपल को हमने किस तरह सॉल्व किया। पहला एग्जांपल ये था जिसमें कि आपका कैलकुलेट होने के बाद y इक्वल टू 0.9x प्लस 2.2 आया, और दूसरा सॉल्यूशन हम देखे जिसमें कि x और ये लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन जो है वो आपका पैरामीटर a और b का वैल्यू 1.7 और 1.9 आया, और रिग्रेशन लाइन इस तरह से फिट किया गया। तो ये बेसिक तरीका है रिग्रेशन निकालने का। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आपका कोरिलेशन भी दिया जाता है, और आपका जो है उसके हेल्प से भी हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। तो उसमें x माइनस एक्स बार और कोरिलेशन कोएफिशिएंट और y माइनस वाई बार, वो सारे टर्म का यूज करते हैं। मीन और कोरिलेशन देने पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो भी एक तरीका है। तो इस तरह से आपका रिग्रेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि कंजम्पशन और इनकम में रिलेशन,
वो थ्योरेटिकल मॉडल था, जो कि प्रैक्टिकली होता है कि आपका इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन वो दोनों के बीच कितना रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, कितना लेवल, कितना, मान लीजिए अगर 0.6 आ जाता है, मान लीजिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब स्लोप 0.6 है। मतलब 100 रुपया अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो 60 रुपया हम कंजम्पशन ज्यादा बढ़ा सकते हैं। 6 मतलब 0.6 ही 60%। उसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ जो आपका जो वैल्यू आया, उस जो हमारा 2.2 है, 2.2 जो वैल्यू आया वो कांस्टेंट टर्म है, वहीं से फिक्स होगा लाइन। जैसा कि आपने ग्राफ, एक ग्राफ जो मैंने यहाँ सॉल्व किया है, जिसमें कि आपका देखिए ये जो देख रहे हैं ax प्लस बी जो इंटरसेप्ट है वो है 1.9, और उसके बाद जो स्लोप है 1.7 है। मतलब उसके बाद स्लोप का लेवल मतलब कह रहा है x का वैल्यू अगर 1% से बढ़ाएंगे, अगर x का वैल्यू हम 1 पॉइंट से बढ़ाएंगे, 1 पॉइंट से, तो y का वैल्यू 1.7 पॉइंट से बढ़ेगा। वही आपका कोएफिशिएंट बताता है, मतलब वो चेंजिंग बताता है। और बी कांस्टेंट टर्म है, जैसा कि आप देखे हैं कि हम कंजम्पशन में के जो इक्वेशन है उसमें जो हम लिए थे ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन, फिक्स्ड कंजम्पशन जो था वो एक कांस्टेंट टर्म के समान था, लेकिन इंड्यूस्ड कंजम्पशन के साथ जो स्मॉल सी था वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, जिसको हम स्लोप कहते हैं। तो उसी प्रकार इस सिचुएशन देखिए क्लियर है ये डायग्राम से आपका y इज इक्वल टू ax प्लस बी, और ये जो b का वैल्यू है वो जो है आपका इंटरसेप्ट है जो कि 1.9 आया है, और स्लोप का वैल्यू 1.7 आया है, जिसकी मदद से हम ये रिग्रेशन लाइन को फिट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा रिग्रेशन लाइन फिट होता है। लेकिन ये हमारा डेराइव क्या हुआ, देखिए ये जो फिट हुआ है लाइन, वो आपका एरर टर्म को मिनिमाइज कर देता है, और वहीं से हमारा पैरामीटर ए और बी वैल्यू निकालने का तरीका है, जो कि हमने शुरू में बताया कि वो निकलता कैसे है। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ finding the values of a and b in the above regression equation can be obtained by minimizing square of error term। तो देखिए एरर टर्म जो हमने लिया रिग्रेशन लाइन में, उसको मिनिमाइज करते हैं, उसके बाद उसी के हेल्प से a और b का वैल्यू निकलता है, और a और b पैरामीटर निकल जाने के बाद हम उसको पुट कर देते हैं y इक्वल टू x प्लस बी में, तो वो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन निकल जाता है। और इस तरह से रिग्रेशन का सॉल्यूशन हम करते हैं। ए और बी निकल जाने के बाद रिग्रेशन लाइन लिख लेते हैं। और अगर इस तरह का प्रॉब्लम दिया रहे कि x की किस वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या होगा, तो हमें कोएफिशिएंट मालूम है, रिग्रेशन इक्वेशन निकला हुआ है, तो उस अनुसार अकॉर्डिंगली हम x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू आपको निकल जाएगा।